I think the biggest problem that the challenge that the aviation sector is facing at the moment is the issue of capacity. 2019, India will be the third largest aviation power in the world, and the total requirement of planes will be about 1,000. The second major issue that faces aviation today is the emergence of duopoly. The third issue that India faces is airport capacity. But most of the new airports that have come up are in areas where that capacity was not really required. They are either vanity projects or they are political projects. The fourth major issue, I think, is the availability of the pilots. The fourth major issue, I think, is that of regulation. This again is a crisis that we have seen very recently. We have been saying this thing, and it is not a new thing that was said that Hawai Chappal wala, Exactly. you know that even in past, I think so when I was in Air India, I remember that once I received a complaint from somebody that he had to pay 88,000 to fly from Delhi to Bangalore. किसी भी हालत में किसी भी एयरलाइन को बंद नहीं होने देना चाहिए. ज्यादातर इंडस्ट्रीज ऐसी ही होती हैं. 3-4% के 3-4% इज नॉट अ बैड मार्जिन. इंडिगो का परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रहा है, लेकिन आप देखिए पिछले साल उनके प्रॉफिट 7,000 करोड़ रुपीस के रहे हैं और टाटा के लॉसेस 11,000 करोड़ रुपए के रहे हैं. हाउ डू एक्सप्लेन इट? पायलट्स जो हैं महसूस करते हैं कि वो पूरी एयरलाइंस का सोल है. अगर वो नहीं चलाएंगे प्लेन तो प्लेन नहीं उड़ेंगे और एयरलाइंस कोलैप्स कर जाएंगी. और ये क्राइसिस सबने फेस की है. क्वांटास ने फेस की है, जापानीज एयरलाइंस ने की है, कैनेडियन एयरलाइंस ने की है, लुफ्थांसा रोज करता है. ये सारी एयरलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस करती हैं. उनकी डिमांड्स काफी होती हैं कि नवंबर के महीने में इसी एमडीटीओ के होते हुए इंडिगो ने कैसे परफॉर्म किया था. 1 दिसंबर को ऐसा क्या हो गया कि पायलट शॉर्ट हो गए, जबकि एफडीटीएल इफेक्ट में आ चुका था 1 नवंबर से. It was an emergency situation. India's biggest airline, Indigo, cancelled over 2,200 flights in 2 days. Passengers were stranded at the airport for several days. 1 लाख से ज्यादा यात्री फंस गए थे. शादियां रुकी, लोगों की जरूरी यात्राएं छूट गईं, दफ्तर के काम छूट गए. आखिर ये समस्या क्यों आ खड़ी हुई? कौन जिम्मेदार था? और क्या अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी? इन्हीं सब विषयों पर बात की हमने एयर इंडिया के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे श्री रोहित नंदन जी से. वे 1982 बैच के यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं. आइए उनसे बात करते हैं. वेरी वेरी वेलकम टू इंडियन मास्टरमाइंड सर. थैंक यू सो वेरी मच शरद. And the first thing I wanted to know is what are the issues facing aviation sector these days? Well, first of all, thank you for inviting me for this discussion. The issues are quite a few. Some of them are old, some of them are new. The old ones have evolved into new dimensions, but the new ones are now emerging because of increase in traffic as well as in change in technology. I think the biggest problem that the challenge that the aviation sector is facing at the moment is the issue of capacity. The total traffic in the country has, I believe, come up to about 40 crores annually. And the total number of planes that India has as of today is about 750 planes. Way back in 2010, I remember when I was Joint Secretary in the Civil Aviation Ministry, at that time we had organized a seminar in which the McKinsey and Boeing had projected that by 2019, India will be the third largest aviation power in the world, and the total requirement of planes will be about 1,000. We have already become the third largest market in the world, but the number of planes has stuck at around 750. And therefore, we are woefully short of capacity. What is immediately required is infusion of new aircraft in the system. Though Air India and Indigo both have placed huge orders, but it will take a long time for it to fructify. You might be remembering that Indigo was given sanctions and permissions to import planes, and I think so the total number of planes that they were given permission for was about 500, way back between 2005 and 2010. But as of today, they have got only 434 planes. Though their induction has been fairly healthy, but the induction of the other airlines has been very poor. Air India was not able to import planes. The last order that was given was in the old government system in the year 2004. And the last planes, I think, came in around 2017. The new airline under Tata has now also placed orders for 470 planes.
but they will also take about 5 to 10 years before they actually arrive. So the capacity of Indian airlines is very, very low, and this has got to be increased in order to accommodate the increase in traffic. So I personally feel the biggest challenge that India today faces is the capacity in the civil aviation sector. The second major issue that faces aviation today is the emergence of duopoly. This was not the situation earlier when there were very many airlines. But now we have now come to a situation where there are only two airlines. For all practical purposes, it is Indigo and the Tatas. Indigo has got about 65% of the market share, and I think Air India has about 26 to 30% market share, which varies from month to month. Now, this is a very dangerous idea. And I've been saying this thing for the last 3 years. Ever since Vistara was allowed to be merged with Air India, I foresaw that we are moving towards a duopoly, which can be very, very dangerous. And we have seen the consequences of that in the recent Indigo crisis. The third issue that India faces is airport capacity. When I was in the aviation sector at that time, there were only 70 functional airports, but that has now increased to 140. But most of the new airports that have come up are in areas where that capacity was not really required. They are either vanity projects or they are political projects. They have been created in order to cater to the local constituency, but they were not required. And if you take the case of UP alone, there are now, I think, about 20 airports, of which more than half are non-functional in the sense that there's not a single flight there. So this increase in capacity that has been achieved is actually non-functional, is of no use. But this is an immediate necessity that wherever there is a demand, there should be an airport and a functional airport. The fourth major issue, I think, is the availability of the pilots. This has always been an issue. Though we have got a large number of unemployed pilots in the country, but they are of the first pilot category, not of captains. The crisis is in the availability of captains. It appears that the airlines are not doing adequately well as far as training is concerned and in promotion of pilots is concerned, because of which we have got very few commanders, and without a commander, a plane cannot fly. So this is a very major issue which has got to be looked into, and I think some mechanism has to be worked out with the airline industry and the trainers, the training industry, that we must have adequate number of not only first officers, but also of commanders. The fourth major issue, I think, is that of regulation. This, again, is a crisis that we have seen very recently. World over, the regulatory bodies have been corporatized. They have become very professional. In India, we are stuck in the old system. In the year 2010, there was an attempt to convert the DGCA into a corporate body, into a corporation. But that has not really happened, and it's now nearly 15 years. We were ready with the legislation, but for whatever reasons, I would not like to discuss that on this platform, but it was not allowed to happen. And for 15 years, we've been struggling with that. I was actually appointed as a chairman of one of the committees to examine this body about 3 or 4 years back. But when I saw that we are moving against a wall, I decided to quit. I resigned from that position, because unless the government is ready to hand over the regulation of the aviation sector to private hands, I think we will not move forward. It's a fear. There is no problem in doing this thing. Most of the countries in all over the world have a corporate body, but in India, we have not been able to do it. The prices of the airlines is also a very major issue. In spite of the fact that we are getting new planes, and we have got flights all over the country, but the prices have become so high that for the common man to fly on a plane is now becoming a dream. We have been saying this thing, and it is not a new thing that was said that Hawai Chappal wala, Hawai जहाज में उड़ेगा. आपको याद होगा हवाई चप्पल पहन के आदमी अगर प्लेन में चढ़ेगा, that is the dream the government had shown to the people. Sharad, this dream has been actually shown to the people way back in 1978. If you recall, Mr. Devilal was the first person who said this thing. कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में चलेगा. And it is now how many years? 37 years? And the dream is still very far off. And from flying from Lucknow to Delhi now is so expensive.
It used to be about 1,500 to 2,000 rupees Right. some years back, and now it is about 4,500 rupees one way, Right. mind you. Right. So the flights are becoming very, very expensive, and this is As we something saw that. during the Indigo crisis, that means prices had gone up to 30,000, 40,000. See, in a crisis situation, it always happens. वो तो आपका law of economics है कि that whenever there is the demand increases and there is a limited capacity, the prices will go up. This is, you know, that even in past, I think so, when I was in Air India, I remember that once I received a complaint from somebody that he had to pay 88,000 to fly from Delhi to Bangalore. But these were exceptional cases. When this matter was raised up to the government and I examined the entire matter, I realized that the total number of such tickets is about 1%, and they contribute to only about 1% of the total revenue. But now it is becoming generic. And that is the problem. As long as it is only that in an exceptional case, the tickets become very high, and it happens everywhere. आप रिक्शा भी लीजिए, when it is raining, it becomes more expensive. लेकिन But अगर आपका is जनरल it टिकट ही 4,000, yeah, please carry on. is it because the demand is high and the supply is low? इतनी सीट्स नहीं है, इतने इतने प्लेन्स नहीं है, इतनी फ्लाइट्स नहीं है, तो इस वजह से वो डिमांड सप्लाई का एक एस्क्यूड रेशियो हो गया है. दैट्स व्हाई द प्राइसेस आर गोइंग अप. या एक डिसबैलेंस तो है ही, इन द सेंस कि डिमांड बढ़ती चली जा रही है और कैपेसिटी लो है. मैंने शुरू इसीलिए कहा कि मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो तो कैपेसिटी की है. अगर कैपेसिटी हो जाए, कंपटीशन आ जाए, देन इन दैट केस प्राइसेस विल रेगुलेट. अपने आप थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा, पर जब जब ऐसा हुआ है कि कंपटीशन हुआ है, प्राइसेस अपने आप रेगुलेट हुई हैं. नाउ दैट एयर इंडिया इज नॉट देयर, गवर्नमेंट सिस्टम इज नॉट देयर विच कैन रेगुलेट प्राइसेस. नाउ इट इज entirely टू द प्राइवेट सेक्टर कि दैट वो कितने प्राइस रखना चाहते हैं. देयरफॉर कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड. I recall when in 2010, I believe that there was a problem in Leh and the prices went sky high. At that time, the government intervened and allowed and asked Air India to regulate the prices. When there was a earthquake in Nepal, again the prices went very high. But I, as chairman of Air India at that time, said that we will peg the price at 2,500, and that completely doused the whole situation, and the prices of all airlines came down. So that capability now government does not have. Either it interferes with prices, or it then in that case it has to live with whatever is happening. So prices is a very major issue. So the government has no provision to control the prices as of now. No, I think that there is absolutely no provision. And why should it regulate the prices of airplanes? आप दाल चावल और रोटी का तो आप करते नहीं हो प्राइस रेगुलेट, जिसकी ज्यादा जरूरत होती है. ऑयल्स की तो आप प्राइसेस कंट्रोल करते नहीं हो. देन व्हाई इन दैट केस जो 1% या 2% लोग हैं इंडिया के, उनकी प्राइसेस को आप रेगुलेट करने का क्यों सोचना चाहिए? एंड दिस इज व्हाट द एयरलाइन एयर बिजनेस हैज बीन सेइंग, दैट दिस इज नॉट योर जॉब. लेट मार्केट प्रिवेल. एंड देयरफॉर वी हैव गॉट टू सी दैट द मार्केट फोर्सेस आर सच कि प्राइसेस अपने आप रेगुलेट हो. गवर्नमेंट नहीं कर सकती है और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो खतरनाक. Now let's come to the solutions one by one. The first thing you said was there were too less planes, and we require more planes, and that will take at least 5 to 10 years. तो क्या ये 5 या 10 साल तक हमें ऐसे ही सफर करना पड़ेगा? अभी I am happy that the government has given permission to 3 new airlines yesterday or day before, I believe. Right. So इस तरीके से अगर आप इजी कर दीजिए, एंट्री बैरियर्स को खत्म कर दीजिए, then in that case no new people will come in, and they will then in that case bring in new capacity. There should be a condition कि ठीक है आप 1 साल के अंदर इतने प्लेन्स लाओगे, 2 साल में ये कंडीशन ऑफ उनकी परमिट होना चाहिए. अगर इस तरीके से कैपेसिटी एक तरीके का फोर्स्ड सिस्टम होगा, लेकिन इसके अलावा इस समय कोई विकल्प नहीं है. अगर आप नॉर्मल सिस्टम को एज इट इज चलने दीजिएगा, देन इन दैट केस वी हैव टू वेट फॉर 5 years. बट सर एक चीज हम पहले उस पर बात कर लेते हैं कि व्हाई so many airlines shut down during last 10 years, right from Jet to Sahara to Air Deccan, वो तो खरीद भी लिया. लेकिन इस तरीके से बड़े ढेर सारे एयरलाइंस थे. स्पाइस जेट बहुत बुरी हालत में है, गो एयर बंद हो गया. तो ये इतना क्या वजह क्या रही कि एक के बाद एक एयरलाइंस बंद हो गई हैं? जब इतनी डिमांड है तो एयरलाइंस बंद क्यों हो रही हैं? मेरा तुम्हारा ख्याल है कि दैट बीच में एक बार डीजीसी ने शुरू किया था, जबकि उन्होंने सर्वेलेंस, फाइनेंशियल सर्वेलेंस ऑफ एयरलाइंस किया था, और उस समय भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी. आई वॉज इन द एयरलाइन इंडस्ट्री एट दैट टाइम, तो हम लोगों ने सबका इसका अपोज किया था, आपसे क्या मतलब.
हमारी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ये हमको आप छोड़ दीजिए तय करने के लिए। लेकिन हिस्ट्री को देखते हुए अब हमारा ख्याल है कि ऐसा सिस्टम हम लोग को इमर्ज करना, डेवलप करना पड़ेगा, कि हमको मालूम चलता रहे कि एयरलाइंस कब अपनी उनकी जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है उनको हम लोग को समझना पड़ेगा और उनको हेल्प करना पड़ेगा। नॉर्मली गवर्नमेंट ये करती है कि हमसे क्या मतलब है, आप लोग की ये अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है अपने आप हैंडल करिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो एयरलाइंस बंद होती रहेंगी। सहारा का एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल नहीं, उनको तो खरीदा गया था। सिमिलरली डेक्कन भी खरीदा गया था। लेकिन किंगफिशर और जेट, जेट, गो एयर। दैट एक्सटेंट गो भी, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि गवर्नमेंट अगर राइट साइड टाइम पर इंटरवीन करे, कुछ रिलैक्सेशंस दे दे, तो मे बी दोज कुड हैव बीन सेव्ड। I remember in 2014, and the date was 14th of December. That day, SpiceJet was supposed to close down. And my boss, the Secretary of Civil Aviation, phoned me up. I was traveling in the car towards the ministry, and he phoned me up at that time that what should we do? And I very strongly told him कि सर इस समय हम लोगों को इंटरवीन करके कोशिश करनी चाहिए कि ये एयरलाइन बंद ना हो। हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से किंगफिशर के बंद होने पे कितना बड़ा हाहाकार मचा था पूरे कंट्री के राइट। अंदर। अगर स्पाइस जेट उस समय बंद हो गई होती तो फिर उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट, पैसेंजर्स को उतनी ही दिक्कतें फेस करनी पड़ती। था क्या इशू, बेसिकली ये था कि दैट आप एयर इंडिया, आप इंडियन ऑयल कंपनी को, इंडियन ऑयल कंपनीज को आप पैसे पे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और एयरपोर्ट चार्जेस पे कर पा रहे हो। यही दो मेजर इशू होते हैं इन मोस्ट ऑफ जी। द केसेस। अगर आप देखेंगे तो यही इशू ज्यादा होते हैं। ये दोनों एंटिटीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है। अगर कोई जिस तरीके से बैंक्स में होता है वन टाइम सेटलमेंट का सिस्टम होता है, या अगर आप कर देते हैं कि ठीक है चलो स्टैगर्ड पेमेंट कर दो, कुछ आप उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो फॉर सम टाइम, देन मे बी दीज एयरलाइंस कुड हैव बीन सेव्ड। सो मेरा अपना ख्याल है कि दैट गवर्नमेंट को इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करने की जरूरत है। खतरनाक होता है ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब सेलेक्टिवली लोगों को मदद करते हैं तो उसके बारे में दुनिया भर के आप आरोप लगते हैं। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप की जाती है, की जा सकती है। मेरा ख्याल है कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज अपॉइंट कर दीजिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी रखिए, आप जुडिशरी के लोगों को भी रखिए, कि केस टू केस बेसिस में आप लोगों को हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। किसी भी हालत में किसी भी एयरलाइन को बंद नहीं होने देना चाहिए। आफ्टर ऑल जब सत्यम का केस हुआ था तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया था और प्राइवेट सेक्टर ने इंटरवीन करके अल्टीमेटली एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर दिया था। उसी तरीके से ये इस तरीके का मेरा ख्याल है कि हम लोगों को कोई ना कोई मैकेनिज्म डेवलप कर लेनी चाहिए, और गवर्नमेंट के लिए ये एक सजेशन है कि जिस पर जरूर विचार करना चाहिए। एयरलाइन शुड नॉट बी अलाउड टू बी क्लोज्ड, दो अदरवाइज ये। चीजें हैं यहाँ। जी। दो चीजें हैं। पहली चीज तो कि गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बहुत दिनों तक सस्टेन किया, बहुत दिनों तक हेल्प किया। स्टिल वी कुड नॉट सेव एयर इंडिया, वी कुड नॉट सस्टेन एयर इंडिया। दूसरी चीज है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाते हैं तो वो गवर्नमेंट का होगा या कोलैबोरेशन में प्राइवेट होगा। इट कैन बी प्राइवेट, इट कैन बी वेरी वेल प्राइवेट। सत्यम को तो प्राइवेट नहीं किया है ना, महिंद्रा ने टेक ओवर किया। जी। गवर्नमेंट ने केवल फैसिलिटेट किया था उसको। और ये तो एयर इंडिया के बारे में एक, अनफॉर्चुनेटली नोट माइंड माई सेइंग इट, लेकिन एक जर्नलिस्टिक आप लोगों ने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया हुआ है। 2008 तक एयर इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक पैसा नहीं लिया था। डिविडेंड दिया करती थी गवर्नमेंट को। 2007 में जिस समय की लिमैन क्राइसिस आई है और जिस समय ऑयल प्राइसेस $140 तक पहुंची, जिस समय की इंटरवीन करना चाहिए था, उस समय किसी ने इंटरवीन नहीं किया। दैट वाज द टाइम व्हेन एयर इंडिया शुड हैव बीन हेल्प्ड। उसके 5 साल बाद, 4 साल बाद आप अगर आपने इंटरवीन किया भी, बाय दैट टाइम थिंग्स हैड बिकम सो बैड कि आप कितना क्या कर सकते थे। और अगर सपोज करिए कि आप इतनी बड़ी एयरलाइन जो थी एयर इंडिया, जो कि नेशनल कैरियर था, उसको आप 2,500 करोड़ रुपए हर साल देते भी तो कौन बड़ी बात थी। रेलवेज को देते हैं कि नहीं देते हैं आप? जी। रेलवेज को दे सकते हैं जो कि न जाने जब से पैदा हुई तब से लॉसेस में है। उसको तो नहीं कहा जा सकता कि ये टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है। लेकिन क्योंकि एयरलाइंस में लोग कंपैरेटिवली रिचर लोग ट्रैवल करते थे, इसलिए कहा जाता था इनको क्यों हम सब्सिडाइज कर रहे हैं। 2,500 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। हमारा टोटल लॉस जो होता था वो 2-2,500 करोड़ का ही हुआ करता था। अगर उतना सस्टेन करते हुए हमको दिया होता शुरू से, तो शायद कभी प्रॉब्लम नहीं होता। ये प्रॉब्लम 2008 में केवल जस्ट बिकॉज ऑफ द लीमैन ब्रदर की क्राइसिस की वजह से ही किया आई थी। लेकिन उसको इस तरीके से हमेशा प्रेजेंट किया गया फॉर वॉट एवर रीजंस, कि ऐसा लगता था जैसे कि एयर इंडिया इज अ फेल्ड कंपनी, इट कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन, इट कुड वेरी वेल हैव सर्वाइव्ड। तो सो आई पर्सनली फील शरद की दैट कैपेसिटी का इशू तो बेसिकली इंडक्शन ऑफ न्यू एयरलाइन से हो सकता है।
जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है उनको आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते कि वो कैपेसिटी लाएं, क्योंकि वो तो अब उनको इकोनॉमिकली करना पड़ेगा इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा स्टेप है जो कि अभी गवर्नमेंट ने लिया है 3 एयरलाइंस को अप्रूवल्स देने का। तो एक तो ये भी है कि आर दे वर्किंग ऑन वेरी थिन ऑपरेटिंग ऑपरेशनल मार्जिन्स, इस वजह से 3 या 4% से ज्यादा उनका ऑपरेशनल मार्जिन नहीं होता है। तो आई थिंक दूसरी, ज्यादातर इंडस्ट्रीज ऐसे ही होती हैं शरद। ज्यादातर इंडस्ट्रीज ऐसे ही होती हैं, 3-4% के 3-4% इज नॉट अ बैड मार्जिन। अगर आप 10-12% के वो कर रहे हैं तो देन इन दैट केस आप तो स्पेकुलेशन कर रहे हैं फिर तो आप इस तरीके की इंडस्ट्री में जब एंटर करते हैं, लेकिन इतने ही ऑपरेटिंग मार्जिन पर आफ्टर ऑल वर्ल्ड ओवर इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, थ्राइव भी कर रही है। जी। इफ यू लुक एट साउथ वेस्ट और यू सी एट रेयान, रेयान का क्या मार्जिन होगा? 10-10 हम्म। पाउंड में वो आपको लंदन से वेनिस पहुंचा देती है। तो तो कितने मार्जिन होंगे आप सोच सकते हैं। ठीक है, सब किसी को स्टडी करें तो मालूम चलेगा कि उनके इकोनॉमिक्स क्या है और हमारी इकोनॉमिक्स क्या है। हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप जी। जरा देख लीजिए कि द टाइप ऑफ चार्जेस दैट एयरलाइंस हैव टू पे टू द एयरपोर्ट्स। लैंडिंग चार्जेस, नेविगेशन चार्जेस, ऑयल के बारे में तो हम लोग हजार बार बात कर चुके हैं। और अभी भी जीएसटी में हम ऑयल को नहीं ला पा रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये बहुत हैवी है इंडिया में, जिसकी वजह से एयरलाइंस हमेशा एक तरीके से हवा में ही उड़ती रहती हैं, न जाने कब गिर पड़ेगी इसके बारे में कोई भरोसा नहीं है। एंड कुछ तो एयरलाइंस को खुद करना पड़ेगा और कुछ गवर्नमेंट को इसमें मदद करनी पड़ेगी। फॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि दैट दो की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इंडिगो की वजह से जो कुछ हुआ है, द होल कंट्री हैज वोकन अप। एयर इंडिया की स्ट्राइक्स जब होती थी तो ये क्राइसिस सामने आया करती थी, लेकिन क्योंकि हमारा मार्जिन बहुत, हमारा मार्केट बहुत छोटा रह गया था, 15-16% का रह गया था, तो इसलिए नेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ लोग गाली दे दिया करते थे एयर इंडिया, कुछ लोग गाली दे दिया करते थे कि आईएएस अधिकारी चला रहे हैं इसलिए बेकार हो गई है। और सब लोग खुश हो जाया करते थे कि चलो सोल्यूशन उन्होंने बता दिया, आईएएस को हटा दो तो एयर इंडिया ठीक हो जाएगी। लेकिन अब इंडिगो, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही वेल मैनेज्ड एयरलाइन है, उसकी क्राइसिस ने इस बात को शो किया हुआ है कि प्रॉब्लम जो है ये ऑर्गेनिक है और इसको हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा जड़ पे जाकर। सो आई एम हैप्पी दैट दिस हैज हैपेंड, दो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बट अब हमारे कम से कम आंखें खुलनी चाहिए। अब तो केवल सीईओ सस्पेंड आप करके और इससे का नहीं होगा कुछ। आप हमेशा कहते हैं कि जो डुओपोली क्रिएट हुई है और इंडिगो इंडिगो की ग्रोथ, ये ऑर्गेनिक है। और जो डुओपोली क्रिएट हुई उसमें इंडिगो का कोई कोई हाथ नहीं है। अगर उनके पास 65% मार्जिन है तो वो उन्होंने किसी से छीना नहीं है, या कोई कोई मोनोपोली उन्होंने क्रिएट नहीं की है, वो अपने आप हुई है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका एक्सप्लेन इसलिए करेंगे कि पहली बात है कि प्रॉफिट अर्न करना हर कंपनी का अधिकार है और इसीलिए आती है वो। आफ्टर ऑल 2-3 ऐसे क्वार्टर्स रहे हैं जिसमें कि इंडिगो का परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रहा है। लेकिन आप देखिए पिछले साल उनका उनकी उनके प्रॉफिट 7,000 करोड़ रुपीज के रहे हैं और टाटा के लॉसेस 11,000 करोड़ रुपए के रहे हैं। हाउ डू एक्सप्लेन इट? जी। बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड दे मैनेज द फाइनेंसेस वेरी वेल। जो बाकी एयरलाइंस के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं, वो उनके लिए सेंटर ऑफ अर्निंग होता है, रेवेन्यू होता है। जी। दे हैव प्लान्ड देयर एयरलाइन वेरी वेल एंड उन्होंने साउथ वेस्ट का और बाकी जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं अमेरिका की और यूरोप की, उनके मॉडल को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है। ऑर्गेनिक ग्रोथ अभी ऐसे भी देखिए आप शरद की, दैट द टोटल कैपेसिटी दैट इंडिगो हैज एज ऑफ टुडे इज ओनली 54%। 54% of the total capacity in the country is with Indigo. That cannot be called a monopoly, but उनका market share 65% है, sheerly by a simple principle of good performance. They perform so जी। well. You can be sure कि हमने हमने इंडिगो की फ्लाइट अगर बुक कर ली तो इसका हम पहुंच जाएंगे और समय से पहुंच जाएंगे। ये बड़ी चीज है। खाना नहीं खिलाएं वो एक अलग बात है, उनका स्टाफ बहुत ही, आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल है अपने एटीट्यूड्स में। लेकिन बट अल्टीमेटली आदमी ट्रैवल करता है, बेसिक अगर बॉटम लाइन देखिए तो होता है कि कहीं से कहीं जाने के लिए और समय से पहुंचने के लिए, दैट दे प्रोवाइड। बाकी एयरलाइंस जो नहीं कर पा रही हैं, ये गवर्नमेंट को देखना है कि दैट वो क्यों नहीं कर पा रही हैं। टाटा को कौन मना कर रहा है? टाटा के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जी। टाटा के परफॉर्मेंस का लेवल अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया है जो कि एयरलाइन, जो कि इंडिगो का है। इंडिगो की ग्रोथ कंप्लीटली ऑर्गेनिक है और ये चीज शरद हम लोग 2005 से जानते हैं, जब से इसका जन्म हुआ था इंडिगो का, कि उनके पास कितने प्लेन्स कब आएंगे। दिस वॉज नोन टू एवरीवन। हम लोगों ने परमिशन दी थी गवर्नमेंट से उनको, 2005 में दी थी, 2010 में तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, उस कमेटी ने उनको 250 प्लेन्स खरीदने की परमिशन दी थी। सो वी न्यू इट फ्रॉम डे वन कि इनके पास इतने प्लेन्स आएंगे। लेकिन हमने
जो बाकी एयरलाइंस थी उनको कोलैप्स होने दिया, एज अ रिजल्ट ये मोनोपोली क्रिएट हो गई लेकिन ऑर्गेनिक में। इस बार जो क्राइसिस क्रिएट हुई है तो उसकी जड़ में कि इंडिगो is buying more planes, but it is not increasing the number of pilots. तो पायलट्स की क्राइसिस हो गई है, फिर पायलट्स को वो सैलरीज नहीं दे रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, प्रमोशंस नहीं दे रहे हैं, उसको लेके पायलट्स नाराज हैं। सी देखिए, पायलट्स और मैनेजमेंट के बीच में तो एक परपेचुअल वॉर पूरी वर्ल्ड में चलता है। लुफ्तांजा में रोज स्ट्राइक आप देखते हैं, पायलट्स की वजह होती है। एयर कनाडा में कंटिन्यूअसली होती है। हैविंग बीन अ सीएमडी ऑफ एन एयरलाइन, आई फेस्ड द लॉन्गेस्ट स्ट्राइक ऑफ पायलट्स इन द कंट्री एवर। 52 दिन की स्ट्राइक हुई थी। सो ये पायलट्स और मैनेजमेंट के बीच में हमेशा प्रॉब्लम चलता रहता है। पायलट्स जो है महसूस करते हैं कि वो पूरी एयरलाइंस का सोल है। अगर वो नहीं चलाएंगे प्लेन तो प्लेन नहीं उड़ेंगे और एयरलाइंस कोलैप्स कर जाएंगी। और ये क्राइसिस सबने फेस की है। कॉन्टास ने फेस की है, जापानीज एयरलाइंस ने की है, कैनेडियन एयरलाइंस ने की है, लुफ्थांजा रोज करता है। ये सारी एयरलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस करती हैं। उनकी डिमांड्स काफी होती हैं। दे वांट वेरी हाई सैलरीज एंड दे वांट टू वर्क फॉर लेसर नंबर ऑफ आवर्स। जो ये आपका बेसिकली एवरीटीएल का इशू आता है, बेसिकली इसीलिए आता है कि पायलट्स कहते हैं कि हम फटीग्ड हैं या हम स्ट्रेस्ड हैं। अब फटीग और स्ट्रेस का कोई थर्मामीटर तो होता नहीं है। जी। आपने कहा कि मैं थका हुआ हूं तो मैं थके हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट ये एवरीटीएल का करेक्शन फ्रॉम हर 4-5 साल पे मांगते हैं कि साहब अब हमको और कम चाहिए काम करने के लिए। हम्म। मिस्टर जैदी जिस समय डीजीसीए थे वे बैक इन 2008 आई बिलीव, उन्होंने एक एवरीटीएल की पॉलिसी बनाई थी विच वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने, बड़ा साइंटिफिक थी। साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस किया था, पायलट से डिस्कस किया था, बहुत से लोगों से डिस्कस करके। लेकिन 2015-16 तक आते आते वो लोगों ने कहना शुरू हुआ कि साहब इससे तो हमको रेस्ट नहीं मिल रहा है। फिर आपकी 2019 में आई, उसके बाद 2024 में आ गई। एवरीटीएल कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट जो पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ती जाती है। हम्म। मैं 2012 की बात आपको बता रहा हूँ, शायद मैं सीएमडी एयर इंडिया था उस समय। किसी भी शॉर्ट, सॉरी, आपके छोटे प्लेन्स के लिए 320, 328, 320 एंड 3737 के लिए हमारी टोटल रिक्वायरमेंट होती थी 5.25 पायलट्स, पायलट सेट। यानी कि करीब करीब 10.5 पायलट हमको जरूरत पड़ते थे एक प्लेन के लिए। उस समय इंडिगो के पास 7 का सेट हुआ करता था। दे वर मच बेटर देन ऑफ देन अस। हम्म। अब अचानक एकदम से ऐसा क्यों हो गया कि इंडिगो ने पायलट लेना बंद कर दिया, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और इस बात को शायद ये जो कमेटी सेटअप की गई है ये बताएगी कि एक्चुअली उनके पास कितने पायलट्स हैं और पर प्लेन उनका कितने सेट है। जहां तक मेरी जानकारी है, जो कि पब्लिक डोमेन में है, कि इस समय इंडिगो के पास 434 प्लेन्स है और 5,500 पायलट्स हैं। इसको शॉर्ट तो नहीं कहा जा सकता। प्रॉब्लम हम्म। आती है पैटर्न ऑफ फ्लाइट से। अगर आप रात की फ्लाइंग ज्यादा करेंगे देन इन दैट केस योर रिक्वायरमेंट फॉर पायलट्स विल ऑलवेज बी मोर। Mind you, in the last 15 years, except the 2010 Air India crash, Mangalore crash, स्ट्रेस की वजह से या फटीग की वजह से इंडिया में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन कंटिन्यूसली डिमांड रहती है कि वीटीएल को आप और लिबरलाइज करिए और लिबरलाइज करिए। सो एज अ रिजल्ट पायलट्स की रिक्वायरमेंट हर एयरलाइन को कंटिन्यूसली अपनी बढ़ानी पड़ती है, जो कि कॉस्ट है। जी। कॉस्ट अवॉइड करने की कोशिश करते हैं एयरलाइंस। जो जो एयरलाइन एक जमाने में मानक मानी जाती थी, इट वाज सपोज टू बी अ स्टैंडर्ड ऑफ इफिशिएंसी, उसको अचानक हम लोग कहने लगे कि साहब इनके पास ये नहीं किया उन्होंने उन्होंने वो। आई रिमेंबर दैट कंटिन्यूअसली एयर इंडिया को इसीलिए हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था कि साहब आप पायलट्स का यूटिलाइजेशन कम करते हो, आपके प्लेन्स का यूटिलाइजेशन कम होता है। जब वो 14 घंटे चलाते हैं तो आप 11 घंटे पर फ्लाइट चलाते हो, या 8 घंटे आपका प्लेन चलता है। जब वो उनके पायलट्स 10 घंटे के लिए काम करते हैं तो आपके 6 घंटे के लिए काम करते हैं। जब उनके पायलट्स 6 लैंडिंग करते हैं तो आपके यहाँ 4 करते हैं। ये बातें एयर इंडिया को हमेशा बताई जाती थी कि आप एफिशिएंट एयरलाइन नहीं है, वो एफिशिएंट एयरलाइन है। आज सडनली उनके ऊपर वो आक्रमण हो गया है कि दैट आप एफिशिएंट नहीं हो। एंड अगर इस एवरीटीएल आने के बावजूद भी नवंबर के महीने में कोई कैंसलेशन फ्लाइट का नहीं हुआ, जो नॉर्मल होते हैं वो हुए होंगे, तो ये प्रश्न जरूर पूछने की बात है कि फरवरी इसकी नवंबर के महीने में इसी एवरीटीएल के होते हुए इंडिगो ने कैसे परफॉर्म किया था। और परफॉर्म किया था एट पार, जो कि किसी और एयरलाइंस के का लेवल होगा। दिस इज अ मिस्ट्री दैट इज एक्चुअली फॉक्सिंग मी, कि समझ में नहीं आता कि दैट सडनली 1 दिसंबर को ऐसा क्या हो गया कि पायलट शॉर्ट हो गए, जबकि एवरीटीएल इफेक्ट में आ चुका था 1 नवंबर से। जी। पूरे महीने वहां के पायलट्स वर्क करते रहे, एंड सडनली ऑन द 1 दिसंबर दिस क्राइसिस अरोज।
जी। व्हाट वाज द डीजीसी डूइंग एट दैट टाइम? क्या उस समय पायलट्स एफडीटीएल के खिलाफ काम कर रहे थे? एयरलाइन क्या एफडीटीएल के खिलाफ काम कर रही थी? व्हाट सडनली हैपेंड इन ऑन द 1 December? आई स्टिल विल गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू इंडिगो। इंडिगो, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने इनको बहुत करीब से देखा उस जमाने में, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर हुआ करते थे, हम लोगों को कंटिन्यूअसली एक तरीके की मार्केट इंटेलिजेंस रखनी पड़ती थी कि वो क्या कर रहे हैं, और हमको क्रिटिसाइज किया जाता था कि लेकिन आप उनके जैसे क्यों नहीं हो? व्हाट सडनली हैज गॉन रॉन्ग? कि एंड द उनको कहा पायलट्स जा रहा है कि ऑफ आप एयर इंडिया की तरह क्यों नहीं हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ थिंग्स। एंड आपको, मुझे याद है कि जो पायलट सैलरीज हुआ करती थी इंडिगो की, अनइमेजिनेबल हुआ करती थी, जबकि एयर इंडिया के बारे में कहा जाता था कि वर्ल्ड की हाईएस्ट सैलरीज हम लोग देते हैं। लेकिन इंडिगो की सैलरीज तो उस जमाने में एयर इंडिया से कहीं आगे निकल चुकी थी। हर जी जी। आदमी को पोचिंग करते थे बहुत ज्यादा वो, और एयरलाइन से तो देने के लिए उनको दुगनी तनख्वाह, तिगनी तनख्वाह, 2-2 महीने की उनको वो बोनसेस दिया करते थे। सो वो सब कैसे कहाँ कहाँ गायब हो गई? दो इट इज ट्रू दैट इंडिगो was never very popular with the pilots हम्म। because they were very strict hard masters. अगेन कमिंग टू सर इंडिगो प्राइसेस, तो ये जो भी इश्यूज हम लोग बात कर रहे हैं, आर दीज एयरलाइन स्पेसिफिक इश्यूज और दे आर सिम्टम्स ऑफ अ डीपर सिस्टमेटिक फेलियर? शरद, कॉस्ट तो एक बहुत बड़ा मेजर कंस्ट्रेंट है, ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जस्ट लुक एट द जी टाइप। आप फॉर में प्राइसेस की बात में फ्रॉम अ कस्टमर या पैसेंजर के एंगल से अगर आप देखिए, तो व्हाट इज हैपनिंग अभी, आप शायद 1 जनवरी से यूडीएफ जो है, यूजर डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं, सारे एयरपोर्ट्स के 10-10 गुना बढ़ने वाले हैं। जब वो बढ़ेंगे तो प्राइसेस तो बढ़ जाएंगी। अब जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो नेचुरल है कि दैट ट्रैवलिंग पॉपुलेशन जो है वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। इसको इसको अगर सर थोड़ी आसान भाषा में कहें कि इस समय सिंस मोस्ट ऑफ द जो जो एयरपोर्ट्स हैं, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज, तो फायदा उन प्राइवेट एंटिटीज को हो रहा है और एयरलाइंस जो है वो सफर कर रही हैं। नहीं, इसका एक बेसिक कारण यह है कि अब जो हम लोग एयरपोर्ट्स बना रहे हैं वो 7 स्टार एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू compete विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जी एक आप कह सकते हैं कि वैनिटी है ये हम लोगों की। दे जी। आर वेरी गुड फंक्शनल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। अगर आप नारिटा जाइए, जापान जाइए, आप देखिए कितना बढ़िया एयरपोर्ट है वो, लेकिन कंप्लीटली केवल फंक्शनल है वो। आप अगर यूरोप के कुछ एयरपोर्ट्स पे जाइए, स्पेशली कोपेनहेगन के एयरपोर्ट पे देखिए, इतना एफिशिएंट एयरपोर्ट है, लेकिन वहां पर कोई फ्रिल्स आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। अमेरिका में जिस समय ग्रोथ ऑफ एयरपोर्ट्स हो रही थी और ग्रोथ ऑफ सिविल एविएशन हो रहा था, उस समय कॉन्सेप्ट रहता है जिम्नेजियम टाइप एयरपोर्ट्स, जो कि जिम्नेजियम के बराबर हुआ करते थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन कंप्लीटली फंक्शनल हुआ करते थे। हम लोगों के एयरपोर्ट्स को आप देखिए कितने ग्रैंड हो गए हैं। इस ग्रैंड जो जो पैसे खर्च किए गए, कौन देगा? लेकिन सर वो रेवेन्यू अर्नर भी हैं, इतने ढेर सारे, दे आर काइंड ऑफ बिकम शॉपिंग मॉल्स। तो नहीं तो, वो लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज द प्राइस कोई ना कोई तो पे कर ही रहे हैं ना उसकी। आप वहां पर जब कॉफी बिकेगी तो वो भी तो मिलेगी आपको 500 रुपए की। जी देंगे तो हमें, आप देंगे ना। जी। अल्टीमेटली जो समोसा आपको बाहर 10 रुपए का मिलता है, वो वहां पर 100 रुपए का क्यों मिलता है? It's हम्म। basically because the infrastructure that has been created is at many a time unwanted and unnecessary. इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। When I was in the ministry at that time, मैंने सजेस्ट किया था to the DG to the ERA कि what we should try to do is कि जिस समय कोई भी नया एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा हो, उसकी डिजाइन अप्रूवल के लिए आती है, उसी समय हमको देखना चाहिए कि कोई एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे तो नहीं हो किए जा रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे अल्टीमेटली यूडीएफ में रिफ्लेक्ट होंगे। They will become, ultimately somebody will have to pay them, and हम्म। this is a crisis that is waiting to happen anytime. कभी भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दिल्ली देख लीजिए, बॉम्बे को देख लीजिए, बेंगलोर के एयरपोर्ट्स को देख लीजिए। द टाइप ऑफ डेकोरेशन, द टाइप ऑफ मनी दैट इज बीइंग स्पेंट ऑन दोज एयरपोर्ट्स, इज इट एक्चुअली नेसेसरी? हमें क्या जरूरी है कि हम हीथ्रो से ही कंपेयर करें? कैन वी नॉट कंपेयर विद नरीटा? कैन वी नॉट कंपेयर विद अनीटा? कैन वी नॉट कंपेयर विद कोपेनहेगन एयरपोर्ट? उस तरीके के एयरपोर्ट्स भी हैं जो कि बहुत ही फंक्शनल और बहुत ही सक्सेसफुल एयरपोर्ट्स हैं। I see no reason why we should be spending so much of money on airports and making them look so extravagant. ये हम लोग को अपनी वैनिटी को कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। वैनिटी की प्राइस है फिर, अल्टीमेटली पे तो कॉमन आदमी कर रहा है इसको। तो सर इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि डीजीसीए एंड मिनिस्ट्री, कैन दे प्ले अ रोल इन इन रेगुलेटिंग प्राइजेस, रेगुलेटिंग एयरलाइन बिजनेस? आप कह रहे हैं कि इट शुड बी लेफ्ट टू
the private players themselves, the airlines themselves, because it's demand supply ratio. बहुत लिमिटेड रोल है, बहुत लिमिटेड रोल है। ये बात 2010 के आसपास बहुत बार एक बात प्रोमिनेंट तरीके से उठी थी कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, और उस जमाने में एयरलाइंस ने इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्ट भी किया था। उस समय तो मैं एयरलाइंस में नहीं था, आई वाज इन द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, एंड आई आल्सो फेल्ट एग्जैक्टली लाइक यू आर सेइंग कि दैट क्यों नहीं कंट्रोल करें हम प्राइसेस आपकी। बट द एयरलाइंस केम बैक एंड आस्क्ड अस कि साहब क्या आप दाल चावल के प्राइसेस कंट्रोल करते हो, जो कि 99 क्या 100% लोग यूज करते हैं। आप 2% जो लोग यूज करने वाली चीज है, कमोडिटी है, उसको कंट्रोल करने में इतना परेशान क्यों हो? जिसको फ्लाई करना हो वो करेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? सो देयर वाज अ लॉजिक बिहाइंड इट। एंड इन एनी केस बिजनेस में जहां तक हो सके गवर्नमेंट को कम इंटरफेयर करना चाहिए। फिर भी उस समय गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म डीजीसीए में डेवलप की थी मॉनिटर करने के लिए कि क्या प्राइसेस होनी चाहिए, और फिक्स किया गया था इन कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री कि आप कितना चार्ज करोगे। और तय किया गया था कि आपके जो टिकट्स होंगे उसके कितने बकेट्स होंगे। नॉर्मली उस जमाने में 22 बकेट हुआ करते थे, नीचे से स्टार्ट करता था, जितनी जल्दी आप बुक करोगे उतना सस्ता होगा। जैसे जैसे आप डिपार्चर की डेट के करीब आओगे वैसे वैसे वो टिकट एक्सपेंसिव होता जाएगा। और इसके पीछे बेसिक फिलॉसफी एयरलाइंस की थी कि सब जो लास्ट मिनट परचेज करने वाला होता है वो डेस्परेट होता है, वो इनइलास्टिक डिमांड होती है, वो कुछ भी प्राइस पे करेगा। तो उस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं कि भाई लास्ट मिनट पे आओगे तो ज्यादा प्राइस दो। हर जगह ऐसे ही होता है। आप मैंने जैसा कि एक एग्जांपल दिया था, अगर रिक्शा आप चलाइए रिक्शे वाले के पास और पानी बरस रहा हो उस समय, आप देखिए कि रिक्शा कितने का मिलता है और नॉर्मल टाइम में रिक्शा कितने में मिलता है। अगर आप हम लोगों से बात करके ये हुआ कि 22 जो वो है आपके बकेट्स हैं, ऐसा ना रखिए कि दिखाने के लिए सबसे कम आप जो वाला बकेट हो उसमें आप 2 सीट रख दीजिए। इफ यू रिकॉल एट वन टाइम डेक्कन एयरलाइंस ने शुरू किया था 1 रुपी टिकट। इसी तरीके से बाद में स्पाइस ने भी किया था 1 रुपी टिकट, विच टू विच आई ऑब्जेक्टेड एज सीएमडी ऑफ एयर इंडिया कि सब ये प्रीडेटरी प्राइसिंग है। ये और एयरलाइंस को कटेल के मार्केट को खत्म करने के लिए प्राइसिंग की जा रही। 1 रुपए में टिकट हो ही नहीं सकता। एंड अल्टीमेटली द डीजीसी डिड इंटरवीन एंड सेड नो, 1 रुपए का टिकट नहीं हो तो सकता है। लेकिन मिलता नहीं था, बहुत बहुत रेयर मैंने किसी को सुना है कि वो एक आपको एक आदमी को टिकट दे देंगे, हो गया 1 रुपी टिकट। So that is the trick that any airlines will do कि that वो 22 टिकट में 22 बकेट में सबसे कम वाले में 2 टिकट 1 टिकट रख देंगे, कहने को उनका हो गया कि मैंने एक तो रखा ही था। और फिर उसके बाद जो होता है पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो होता है ऑटोमेटेड, अपने आप चलता है। जैसे जैसे टिकट बिकते जाते हैं वैसे वैसे उनका सिस्टम अपने आप प्राइस फिक्स करता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि सीएमडी बैठ के तय करते हैं कितनी प्राइस होगी। एक्सेप्शनल केसेस में इंटरवेंशन होता है, अदरवाइज इंटरवेंशन नहीं होता है। वो तो अपना आप उनका सिस्टम करता है। उसके लिए ऑलरेडी सिस्टम है, प्रो सिस्टम कहलाता था उस जमाने में। अब आज के दिन कोई और चल आ गया हो तो मैं नहीं कह सकता, बट इट इज इंटायरली ऑटोमेटेड। पर लेकिन अब अगर कभी भी हम 2 महीने या 3 महीने बाद की कोई टिकट या 6 महीने बाद की टिकट बुक करते हैं, और से सपोज 10 दिन बाद की कर रहे हैं, तो बोथ प्राइसेस आर बहुत फर्क उसमें नहीं नहीं मालूम। नॉर्मली तो देखिए ये होता करता था कि 45 डेज पहले अगर आप टिकट बुक करवाइए तो इट वॉज द चीपेस्ट टिकट। 30% तक आपको चीपर टिकट मिलता था उस जमाने में। देन माय कमर्शियल डिपार्टमेंट सेड कि दैट हम लोग इसको 45 से बढ़ाकर 60 कर देते हैं। तो 60 डेज का टिकट हम लोगों ने शुरू किया था, D-60। लेकिन D-45 पर बेस्ट प्राइसेस आपको मिलती थी, और जैसे जैसे आप करीब आते जाते थे वैसे वैसे बढ़ना शुरू होता था। अगर आप जैसा शरद कह रहे हैं कि ऐसा है कि D-60 या D-45 और डी डे के दिन अगर प्राइसेस के अंदर फर्क नहीं है, तो देन देयर इज समथिंग दैट द डीजीसीए कैन वेरी वेल लुक इनटू कि ऐसा क्यों है। ये अधिकार उनके पास है, गवर्नमेंट के पास तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के ही इंस्ट्रूमेंट के तौर पर डीजीसीए ये चीज को देख सकता है। वो सिस्टम अभी भी गिव अप नहीं किया गया है, जबकि एयरलाइंस के साथ इन कंसल्टेशन फिक्स किया जाता कि कितनी प्राइसेस का बैंड क्या होगा। ये तो नहीं होता था कि आप इतने में ही बेचोगे, लेकिन बैंड फिक्स कर दिया जाता था और ये देखा जाता कितने टिकट आपने उतने बैंड के अंदर बेचे हैं। So this the DGCA as well as the government can very well even ensure even now. The total 1 to 2% of the total revenue of the airlines comes from the last minute tickets. All other 98% comes from the normal tickets. अगर आप उसको कैप कर देंगे तो दैट इज माय आर्ग्यूमेंट टू द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑल्सो कि साहब अगर इसको हम कैप कर देंगे तो अपने रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए एयरलाइंस नीचे वाली जो प्राइसेस है उनको बढ़ा देंगी। तो नुकसान एक्चुअली जो कॉमन आदमी है उसको ज्यादा होगा। जो 1 लाख रुपए या 80,000 रुपए या 50,000 रुपए पे कर सकता है, वो देने वाले लोग तो शायद हो सकता है 2 हो, लेकिन 4,000 में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या 1,000 होगी।
और वो संख्या फिर दैट मीन वो अमाउंट जो 4,000 है वो अच्छा बढ़ के 4,200 हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू तो पूरा करना ही करना है। जी। एयरलाइन को अगर सर्वाइव करना है, और एयरलाइन सर्वाइव नहीं करेंगे तो वही होगा जो अभी हुआ। सो व्हाट इज योर फाइनल प्रोग्नोसिस कि अब ऐसे में कि जब ये 5 साल या 10 साल अभी लगने वाले हैं हमें नए एयरक्राफ्ट आने में, नए पायलट्स की ट्रेनिंग में टाइम लगने वाला है, नए कमांडर्स को तैयार करने में 5-7 साल लगने वाले हैं, तो ये 5-7 साल तक मतलब वी कैन सेफली से कि सर ये एयरलाइन की क्राइसिस जो है एयर एयर सेक्टर की, ये अभी 5-7 साल चलनी है, इससे पहले ये ठीक होने वाली नहीं है। शायद क्राइसिस कोई नहीं थी, शायद क्राइसिस तो अभी दिखाई पड़ी ना आपको, अदरवाइज तो आप लोग सब लोग ट्रैवल कर ही रहे थे, कंफर्टेबली ट्रैवल कर रहे थे। एक्सेप्ट ये कि प्राइसेस बढ़ती जा रही थी, उसके अलावा क्या कंप्लेंट थी? कोई भी आदमी इंडिगो के परफॉर्मेंस के बारे में कभी कोई कंप्लेंट नहीं करता था। हमेशा एयर इंडिया के बारे में या किसी के बारे में या किसी के बारे में कंप्लेंट्स हुआ करती थी, लेकिन इंडियो इंडिगो की परफॉर्मेंस के बारे में कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। उनके बिहेवियर के बारे में लोग कंप्लेंट करते थे कि उनका स्टाफ जो है वो ह्यूमेन नहीं है, वो कंपैशनेट नहीं है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब भी कर रहा है, वो सब कहते थे उनके बारे में, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में कभी भी एयर इंडिया के बारे में, सॉरी, इंडिगो के बारे में किसी ने नहीं कहा। क्राइसिस केवल इस वजह से आई क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन एफडीटीएल की वजह से हुई है, और इस तरह की क्राइसिस फ्रॉम टाइम टू टाइम आएंगी, हर इंडस्ट्री में आती हैं। लेकिन दूसरी एयरलाइंस को भी बताया गया था, टाइम फ्रेम उतना ही दिया गया था सबको, एवरीबडी वाज प्रिपेयर्ड, दे कंप्लाइड, बट इंडिगो डिलिबरेटली ट्राइड टू ओवरलुक द डेडलाइंस। पर्सनली फील कि इसमें डीप डाइव करने की जरूरत है कि प्रॉब्लम क्या था। पायलट तो उतने ही थे जितने के अंदर चल रही जी। जब month of November, तो लेकिन then something went wrong, and that is to be discovered what went wrong. जी, तो फिर मैं लास्ट में फिर वही पूछूंगा कि सर कैन यू जस्ट गिव अस इंसाइट कि 5 साल या 10 साल कब तक हम ये सेक्टर को स्टेबलाइज होने में इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, ग्रेजुअली पहली बात है आप इस प्रायोरिटी को कर लीजिए कि दैट हमें सबसे पहले क्या चाहिए। आप अचानक तो नहीं कह सकते कि साहब हमारे जो आज के दिन 700 या 800 प्लेन्स हैं ये बढ़कर 1,500 हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो तो ग्रेजुअली ही इंक्रीज करेगी, और उसके ग्रेजुअल, आफ्टर ऑल आप चाहो भी कि 1,500 हमारे पास प्लेन्स हो जाए, देगा कौन आपको? क्या इतना प्रोडक्शन बोइंग के पास है? क्या इतना प्रोडक्शन एयरबस के पास है? नहीं है। तो वो तो ग्रेजुअल है, जो इवॉल्व एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो तो गुजरनी पड़ेगी, उससे उसको हम लोग शॉर्टन नहीं कर सकते। इतना जरूर कर सकते हैं कि जो डुओपोली क्रिएट हुई है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस को एनकरेज करें कि वो एंटर करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी, और जहां तक हो सके गवर्नमेंट को हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, इस बात को रियलाइज करते हुए कि बिना एयरलाइंस के इंडिया की ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा जाएगी अगर आप नहीं होगी आपके पास एयरलाइंस। फला एयरपोर्ट की मदद कर दी तो आपने हवाई की मदद कर दी, उस चार्ज से बचने के लिए कम से कम एक जनरल सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बन जाएगा तो फिर कोई आरोप नहीं लगाएगा आपके ऊपर। जी। हम शरद गुप्ता को देंगे तो रोहित नंदन को भी देंगे, ये होना चाहिए। थैंक यू सर, इट वॉज वेरी एनलाइटनिंग कन्वर्सेशन विद यू, और हम फिर कभी आपसे दोबारा बात करेंगे। Thank you, Sharad. It was really good to talk to you after such a long time, and this is a subject which is very close to my heart. And I feel pain at times कि problems आती हैं, और ये problems तो खैर कोई अननेचुरल नहीं है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच प्रॉब्लम्स, लेकिन उसका सोल्यूशन पहले से हम लोगों को सोच के रखना चाहिए कि अगर ऐसी क्राइसिस आएगी तो हम क्या करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रोहित जी। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी इससे काफी चीजें, नई चीजें पता चलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप वॉचिंग इंडियन मास्टर। थैंक यू।